Hello, everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the analysis of Vidya India Open Mock CLAT 2026. Another test, that is test number 6. Now, in this test, you have 24 questions, जो कि अक्सर हम देते ही हैं 24 passages that are based on environment. यहाँ पे भी क्लाइमेट स्पेसिफिक है, एनवायरमेंट देखते हैं. आर्ट एंड कल्चर एक लीगल बेस्ड और एक एनालिटिकल बेस्ड है. इस बार डायरेक्शंस वाला है एंड यस इट इज एन इजी वन. तो इसका मतलब करना तो है और 24 के 24 क्वेश्चंस करने होते हैं. ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि द हायर द अटेम्प्ट्स द मोर विल बी योर मार्क्स क्लेम्ड, राइट. दिस शुड बी योर लाइक एक हेडिंग जैसे होना चाहिए. दिमाग में रखना क्या है, अटेम्प्ट ज्यादा होंगे तो ही मार्क्स क्लेम्ड ज्यादा हो सकते हैं. आपने अटेम्प्ट्स कम रखे और सोचा कि सिर्फ मैं एक्यूरेसी पे वर्क करूंगा, 12 क्वेश्चंस में से 10 सही लाऊंगा, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 9.5, राइट. बेटर गो इन फॉर अ हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट सो दैट एटलीस्ट मार्क्स क्लेम्ड वुड बी हायर. ठीक है, तो थोड़ा सा वो एक इक्वेशन आपको समझ में आती जानी चाहिए. जैसे जैसे आप जितने जितने टेस्ट देते रहते हो तो यू शुड फोकस ऑन दैट इक्वेशन. टाइम स्पेंट in that particular section plus the number of attempts questions attempted and how many right you're getting and how many marks you're actually able to collect, right, and put them in your pocket. Here environment में 4 questions हैं, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन बीच में एक passage में 6 questions हैं. So you have a set of 4, 5 and 6 questions. Overall it would be a moderate one. डायरेक्शंस वाला थोड़ा सा इजी है एज आई सेड अर्लियर. तो यू विल बी एबल टू डू से एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस कर सकोगे. हम वो एंड में देखते हैं. वीएमपीसी 2638 है, वीओम 6 है. लेट्स कम टू द पैसेज. Now, when we are reading the passage, please keep this in mind that we are and we should be able to come up with the main points that the author states and hence understand his argument. अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आंसर, सही आंसर पे आना, सही आंसर मार्क करना, दूसरे ऑप्शंस के साथ कंफ्यूजन ना होना, ये आसानी से आपका काम हो जाएगा, राइट. सो फोकस on extracting the main idea. Let us see. It's halfway into this year's UN Conference of Parties with an agreement on the NCQG, an international fund that developing countries can use for climate action. And one of the main aims of COP29, that is ongoing at Baku, Azerbaijan, is still far away. ठीक है, what is still far away? An agreement. ठीक है, अगर हमने मेजर वर्ड्स पे फोकस किया ना तो ये रहा. बाकी ये एनसीक्यूजी को एक एक वर्ड करके पढ़ना नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ पे डैश क्या है तो इसका मतलब डैश वुड गिव अस समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग नाउन इटसेल्फ, राइट. वो डैश का यूज होता है. तो ये एनसीक्यूजी क्या है? इंटरनेशनल फंड है, उसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. बट देन ऑल दिस इज स्टिल फार अवे. तो ये जो 2 डैश है ना, 2 डैश के बीच में जो भी कुछ आता है, इट स्टैंड्स फॉर द noun or the idea that is exactly preceding it. You understand the use of conjunctions also. So currently the agreement is that developed countries will mobilize so much every year for climate finance, but this ends in 25. NCQG will then take over next year, and this is why countries agreeing to the operationalizing and other details of this climate fund is crucial. What is crucial? Agreeing. तो एग्रीमेंट क्रूशियल है. यहाँ पे बोला था एग्रीमेंट इज स्टिल फार अवे, फिर उसकी रीजनिंग दे रहा है. मतलब यहाँ पे पॉइंट हो गई कि एग्रीमेंट काफी दूर है, यहाँ पे रीजनिंग हो गया कि ये एग्रीमेंट चाहिए क्यों. स्टेटेड पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज क्रूशियल. India has said in a statement on behalf of like-minded developing countries on November 14 at the COP that developed countries should commit to provide and mobilize at least this much trillion every year till 2030 through grants, concessional finance, and non-debt inducing support that caters to the evolving needs and priorities of developing countries. ठीक है, इतना उन्हें देना चाहिए. The statement had also called out developed countries. It said that they had committed to jointly mobilize this much every year by 2020, but this deadline was extended to 25. And while the amount is already inadequate when compared to the actual requirements, the real amount mobilized has been even less encouraging. तो यहाँ पे उसने डेटा दे दिया और पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जितना बोला गया था कि आप इतना प्रोवाइड करेंगे डेवलप कंट्रीज को, उतना नहीं कर रहा है. 2020 तक मिनिमम इतना करना था. They extended it to 2025 with the same amount,
and the author says that see they have not even provided that much amount. इसका मतलब कि और ज्यादा अमाउंट कर लेना चाहिए था उन्हें प्रोवाइड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो जो मिनिमम बोला था उतना भी नहीं हुआ, आगे एक्सटेंड हो गया ईयर. तो देन द अमाउंट इज स्टिल द सेम, which should have increased according to the author or according to this statement. While the draft text of the NCQG shot up to 34 pages in the first 2 days, the number of pages has now reduced to 25 in the second draft as of November 16. Experts prefer a shorter and clearer draft that does not include many brackets. Because brackets portray indecision. बहुत सारी चीजें ब्रैकेट में if करके भी दें या ब्रैकेट में एक सिचुएशन दे दें, वो नहीं होना चाहिए, वो indecision दिखाता है. That is what the author says, and 34 से 25 तक हो गया ये. Currently, 25-page draft has more than 400 bracketed items as per carbon brief. Crucial negotiations on this have been pushed to the second week. तो negotiation जरूरी है क्योंकि पहला पॉइंट क्या था इसका कि एग्रीमेंट अभी काफी दूर है. तो जरूरी क्यों है? फर्स्ट वाले में भी इसने कहा था इट इज क्रूशियल, यहां पर भी उसने बोला इट इज पुश टू द सेकंड वीक, मतलब वापस अभी भी काफी टाइम लगेगा. बिगनिंग मंडे. ISD Earth Negotiations Bulletin reported that on November 16, the Arab Group bloc and the bloc of like-minded developing countries said that some of the paragraphs they submitted as part of a streamlined joining proposal for the NCQG draft were missing. A lot of important aspects of the are also currently options. तो कुछ पैराग्राफ्स मिसिंग है, कुछ ऑप्शंस में पहुंच गए हैं, which means there are different points of views that countries still do not agree on. So we come back to the same point that agreement is still far away, जो हमने फर्स्ट लाइन में समझा था. As per the latest iteration of the NCQG draft text as of November 16, a goal of this much trillion per year, the number that India has asked as the NCQG goal in a statement delivered on November 14, from 25 to 29, to be mobilized by developing countries for developing countries is part of one sub-option. Part of the same sub-option is that developed countries cough up at least 600 billion. ठीक है, तो ये options में है कि ये देना है, ये देना है. Now, as per carbon breeze calculation, there are 43 options in the entire text. Each option contains several sub-options as those. अब सोचो ये सब डेटा इतना क्यों दे रहे हैं कि इतने ऑप्शंस, इतनी चीजें ब्रैकेट्स में, means they still do not agree. So that indicates that agreement is still far away. So whatever we have read, we come to one basic point that agreement is crucial between these countries and agreement is still far away. दो चीजें अगर हमने दिमाग में रखी, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कहां से आते हैं, आंसर्स, और कैसे हम कंफ्यूज हुए बगैर we can come to the right answer, right? What can be rightly inferred from the passage? Experts favor a lengthy draft. हम ये हटा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि लेंदी ड्राफ्ट विद ब्रैकेट्स नहीं चाहिए. ठीक. एक्सपर्ट्स बिलीव अ टेक्स्ट विद ब्रैकेट सिग्निफाइज इनडिसाइसिवनेस, ये क्लियरली दिया था, हम देखते हैं. Experts think that adding brackets to the task symbolizes clarity. No, it is either this or this, but we know that it is not clarity. Bracket shows indecisiveness. We'll go back to that paragraph. And they are indifferent, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये तीन चीजें आउट हो जाती हैं. They do not favor a lengthy one. It would go for indecisiveness, which we get from this part of the paragraph. Right? Which of the following is not correct as per the passage? The first draft was crisper than the second one. No, first draft कितना था? 34 pages का. Second draft कितना था? 25 का. तो shorter कौन हुआ? Crisper is to the point and short. Short and crisp note. ठीक है? So NCQG ये not correct है. अब बाकी का देखते हैं हम. Some pointers provided by the Arab were missing from the draft. ये हमने मार्क किया था, they were missing. Developed countries have not fulfilled their commitments. ये भी बोला था जब मोदी जी ने उस स्टेटमेंट में कहा था, he called out the developed countries, no? कि आपको बोला था 1 ट्रिलियन देना है, मैंने डिस्कस किया अभी कि 2020 तक उन्होंने 1 ट्रिलियन भी नहीं दिया है, अभी 25 तक भी वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि हम 1 ट्रिलियन ही देंगे, but they are not giving that much. So let's see where we get this. एक तो यहां से था portray indecision and developed countries cough up at least, पर ये होना था जो कि हुआ नहीं है.
राइट। इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी था वो, वी हैड डिस्कस्ड दैट यू, wait, I'll just come to this one also. They should commit to provide this much every year, but then statement had also called out कि इतना mobilize करना था पर हुआ नहीं है, ठीक है, already inadequate. So you get from the paragraph only, and it is not necessary that you go back to the passage, right? It's not necessary that you go back to the passage every time for every question. अगर पैसेज अच्छे से ध्यान से समझ लिया है तो तुम्हें कंफ्यूजन ऑप्शंस में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमें ऑथर का क्लियर हो जाता है. तो इफ वी हैव क्लैरिटी ऑन दैट मैटर, then we can understand and eliminate the options easily. Let us see which one is true. Developed countries had met the deadline. नहीं, अभी हमने देखा था. All important aspects of NCQG have been agreed upon. 3 बार उसने बोला ऑथर ने कि अभी एग्रीमेंट दूर है, एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा. एग्रीमेंट ऑन द फंड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज बाय डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शन इज स्टिल बियॉन्ड रीच, मतलब इट इज स्टिल फार अवे. सो वी एलिमिनेटेड, दे हैव मेट द डेडलाइन, agreed upon out. Second draft exhibits a decisive nature. No, it is only shorter. लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं. तो ऑप्शंस है, सब ऑप्शंस है, उसे एंड में कहा था 43 ऑप्शंस भी हैं ऐसे. तो फिर डिसाइसिव नेचर नहीं हुआ, राइट. तो वी एलिमिनेट दीज 3. Here this is where we can eliminate also. What can be the logical conclusion drawn from the passage? They are tackled timely by the UN. टाइमली तो नहीं है, काफी लंबे समय से चल रहा है वो काम. एनसीक्यूजी ड्राफ्ट मिस्ड एडिंग द पैराग्राफ सबमिटेड बाय द अरब ब्लॉक. नहीं, देखो कंक्लूजन नहीं है, उसे कहा था सम वर मिसिंग, राइट. इट मिस्ड एडिंग मतलब इनसे गलती हो गई, लैप्स हो गया. और समथिंग दैट वाज मिसिंग मतलब हो सकता है अनइंटेंशनल हो सकता है इंटेंशनल हो, वट एवर बी द केस, राइट. Then, bringing the developed and developing countries on the same page has proved to be an ongoing challenge. इसका ध्यान से समझो तुम कि अगर हमें कुछ लॉजिकल कंक्लूजन करना है तो इट इज नॉट ओनली ऑन द रीजनिंग दैट इज गिवन और ओनली ऑन द फैक्ट्स दैट आर स्टेटेड. वी नीड टू कंक्लूड मीन्स इन्फर मीन्स ड्रॉ आउट, ठीक है. तो जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब से हमें और क्या समझ में आए, ये पूरी बात यही थी कि एग्रीमेंट में अभी टाइम है, एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है. तो हम पूरे मैटर में से और क्या समझ सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को ब्रिंगिंग देम ऑन द सेम पेज इज अ टीडियस टास्क. दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. इट इज एन ऑन गोइंग चैलेंज फॉर द यूएन. कंटिन्यू चल ही रहा है, चल ही रहा है. तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं अच्छे से, राइट. एंड नॉट ओनली ऑन दिस, मतलब कईयों को ये लगा होगा कि चलो ये है ना इट मिस्ड, तो हमने पढ़ लिया और पढ़ा भी था और हमें समझ में भी आ गया, हाँ यार ये तो मिस हुए, राइट. तो इट हैज मिस्ड एडिंग द पैराग्राफ सबमिटेड. पॉसिबल है सही हो, सेंटेंस सही हो, पर लॉजिकली कंक्लूजन नहीं हो, राइट. तो इट इज अ ट्रिकी वन. तभी मैंने कहा कि मॉडरेट है इस बार का टेस्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स आर्गुमेंट एंड हिज माइंडसेट, राइट. उसके हिसाब से आपको समझना है कि अब हम क्या कंक्लूड करें. तो ये तो वैसे भी उसने दिया है अगर आप पढ़ोगे पैसेज तो, ठीक है. ये वाला भी विल मोबिलाइज नहीं होगा क्योंकि वो एग्री तो करे पहले. पहले भी उसने 100 बोला था, 1 ट्रिलियन बोला था ना, किया नहीं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, दे डिड नॉट, right. So now how will you conclude that they are going to mobilize 1.3 trillion? You can't. So this is ruled out again. इसने कहा था they should cough up at least this much, ठीक है. लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे तो हम इसमें विल यूज नहीं कर सकते हैं फिर. चलो, तो पैसेज 1 में 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन में से कम 3 तो तुम्हारे सही जाने चाहिए.
right? Kam se kam. So it is 3 on 4 if I take. Now, we may be entirely familiar with the corporate cliches of Hollywood, but I don't think the underpinnings of traditional story structure are necessarily obvious. Right? Understand. We are familiar with the cliche. Cliche यानी जो हमेशा से चलता आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड जो होता है, तो हम सब समझ सकते हैं ये, ठीक है? But I don't think the underpinnings of traditional story, underpinnings means something that is strengthening, supporting. तो जो ट्रेडिशनल स्टोरी को सपोर्ट करता है, स्टोरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, वो चीजें बहुत ऑब्वियस हो, मुझे नहीं लगता। तो मुझे अगर ऐसा नहीं लगता कि चीजें ऑब्वियस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है कि चीजें छिपी हुई हैं, ढकी हुई हैं। Right? Understand. When the author says that these things, something that is supporting the traditional framework of a movie, all these things are not obvious. Means they are hidden, they are concealed, not open, not overt. Right? अगर यहां से हमें पॉइंट समझ में आ गई ऑथर की, तो बहुत ही बढ़िया है। अब आगे चलते हैं। One of my favorite films, David Lynch's Mulholland Drive, confirms pretty closely to formulaic structure, even if it is complicated by dream sequences. Right now, understand this is the example part. ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आपको रीडिंग के साथ साथ फिल्टरिंग आउट करते जाना चाहिए पॉइंट रेजिंग एग्जाम्पल के साथ पे. So if the author comes up with this point that all the strengthening things for a traditional movie structure, it is not obvious, means it is hidden. And then comes up with this example कि ये वाली जो है एक familiar movie, favorite movie है इसकी, उसमें formulaic structure is being followed very closely, but it is complicated by the dream sequences. Inciting incident of the car crash, Betty's quest to help Rita rediscover her new true identity. I believe that one reason we don't object, don't groan with boredom, is that the scaffolding is crucially hidden. ठीक है, जहां से आपको सपोर्ट किया गया है मूवी में, मूवी की कहानी में, उसके स्ट्रक्चर में जो चीजें सपोर्ट कर रही हैं वो छिपी हुई हैं. ऐसे कहा था, नॉट ऑब्वियस, दैट मीन्स हिडन. Every film opens with a fresh premise. Inciting incident always feels surprising to the protagonist and to us alike. It's a wild card that comes out of nowhere. It is this discreet wailing. Again, third thing, wailing, something that is hidden. अब देखो आपके पास तीन चीजें आ गई, एक वेलिंग, एक हिडन और नॉट ऑब्वियस. ठीक है, so three things are being repeated in this one paragraph. Means the author's point is this, that there is a formula movie or a basic traditional structure for a movie. It is being followed nowadays also, but it is not obvious कि वो वही follow करते हैं. क्यों? क्योंकि वो incidents में छिपा देते हैं और incidents नए होते हैं और incidents क्योंकि नए होते हैं तो they are like enticing or attractive and the audience would find it interesting. But they don't understand that hidden behind or as a base is still the same old formula structure. ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गए यहां तक तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आपके पास ये तीन हिंट्स हैं अभी तक. In fact, it enables a formula to continue to thrive alongside the evident narrative variety. तो evident यानी जो दिखाई दे रहा है और फॉर्मूला जो कि छुपा हुआ है. जो दिखाई दे रहा है वो इंसिडेंट्स, जो छुपा हुआ है वो है बेसिक स्ट्रक्चर मूवीज का. कलेक्शन ये सारे वर्ड्स हैं, किसी काम के नहीं है. Hollywood story makers may have grown more sophisticated about the method of delivery, but they're still providing the same drug, the shake-up that leads to enlightenment. Method of delivery अलग होगी, providing the same drug ये होगा. So ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिलके आपको फर्स्ट पैराग्राफ का पॉइंट दे देते हैं कि इंसिडेंट्स नए हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है ऑडियंस का, लेकिन फॉर्मूला स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मूवी का अभी भी सेम है. यहां से उसे सिर्फ एक एनालॉजी दे दी ड्रग्स वाली.
It is an enterprise in which convention is disguised as a variety while constraint is disguised as freedom. ठीक है, ध्यान से देखना. देखो चौथा वर्ड आ गया disguise. Disguise, veiled, hidden, not obvious. And this surely is the essence of Western consumer capitalism. American dream could take you anywhere. अब इसने Western consumer कैपिटलिज्म के हिसाब से इस चीज को फोकस कर दिया. पूरा कंटेक्स्ट उधर हो गया. American dream could take you anywhere, but still you end up in a cookie cutter house in the suburbs. Your high street is full of alluring cafes, but most are changed and their product stays the same. ठीक है, यही चीज उसने दी है. देखो मतलब आप सिर्फ ऊपरी तौर पे चेंजेस करके लोगों को बेवकूफ बना देते हो. रेडिकल चेंज नहीं आ रहा. इट इज ओनली कॉस्मेटिक और अ सुपरफिशियल चेंज. That is how it can be summed up in simple one sentence. Superficial changes है, radical changes नहीं है. अब चाहे आप वो कैफे रेस्टोरेंट्स के जो डिशेस हैं उसके लिए बोल दो, ड्रग की बात कर लो या मूवीज की बात कर लो, it is still the same. We step into the dark space of the cinema hoping to be taken somewhere new, but the journey follows submerged tracks like a theme park ride, and the only available destination is back home. The reset at the end of every film feels particularly conformist. Conformist means when you're sticking to the set formula or set rules. वो conform होता है. It is as if we have been invited to experience the fantasy of infinite possibilities and radical change only for the status quo to be reasserted. ठीक है, आपको दिखाते हैं कि ठीक है पॉसिबल है, रेडिकल चेंज होना पॉसिबल है, लेकिन वापस एंड कहाँ पे कर लेते हैं वो स्टेटस को, मतलब जो पहले था जैसा था वैसे का वैसे. ठीक है. अब in fact the fantasy reinforces the conformity by acting as a kind of safety valve as well as finding the concealment perturbing. देखो पांचवा वर्ड आ गया concealment. Perturbing is disturbing. Perturbed, देखो turbulence वाला आ गया है. I argue that there are other reasons to question traditional story structure. While it captures something profound about human needs and wants, it can be subtly conservative, and its dominance is symptomatic of a worrying turn against analysis and critique. इसका मतलब लोग एनालिसिस और लोग क्रिटिक पर न ध्यान देते हैं और न समझते हैं और न वो उसे पॉजिटिवली लेते हैं. तो इसलिए क्या होता है, जो फिल्में वो हो जाती है, हिट हो जाती हैं, फॉर्मूला वैसी के वैसी मूवीज और बनना शुरू हो जाती हैं. सो दे फील सेफ कि हाँ हमारी मूवी अभी अच्छी चलेगी क्योंकि फॉर्मूला तो चल निकला है. राइट. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज. अब मेन पॉइंट क्या था कि एज आई सेड अर्लियर सुपरफिशियल चेंजेस बट नो रूट लेवल चेंजेस, रेडिकल चेंजेस नहीं. So traditional story structures Hollywood are inherently flawed. क्या ये flawed थे? नहीं. फॉर्मूला अच्छा ही चला, इंसिडेंट्स अच्छे इंटरेस्टिंग है, लोगों को आ जाता है, लेकिन लोग नया कुछ नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो लोगों की क्रिटिक से बचना चाहते हैं. ये होगा. तो इट इज नॉट सेइंग दैट दिस ट्रेडिशनल स्टोरी स्ट्रक्चर इज फ्लॉड. नहीं, वो एक के बाद एक हिट दे सकती है, बट द स्टोरी इज स्टिल रन ऑफ द मिल काइंड and should be abandoned? Nahi. Persistence of formulaic story structures in Hollywood is sustained by cleverly disguising convention as variety. Convention यानी ट्रेडिशन जो हमेशा से चलता रहा है, मतलब फॉर्मूला, लेकिन उसको अलग अलग इंसिडेंट्स के साथ साथ उसको मतलब वैरायटी दिखाई है, लेकिन बेस वही है. It satisfies and subtly reinforces the audience expectations. Independent bookshops and contemporary novels, ये main point नहीं था, तो C is easily eliminated. We were talking about whether it is movie or books or whatever it is. We are still talking about the people who are creating all this. They stick to the traditional formula with a few cosmetic changes and do not come up with a radical change because of the fear of criticism. American Dream and Hollywood storytelling are both entirely unique. Nahi. Unpredictable experiences for consumers. Again, this was not the main point. यहां से आपको मेन पॉइंट आराम से समझ में आ जाती है, और बाकी के मैंने आपको अलग अलग ये बताए थे कि कहां से हिंट होता है. ठीक है. Crucially hidden and all. Which of the following can be most reasonably inferred from the passage? So now this is considered a failure as a film because it follows a formulaic structure.
ठीक है, वॉज इट कंसिडर्ड अ फेलियर? अब वापस से पैसेज में जाके चेक कर लो कि इसकी मूवी का एग्जाम्पल कब आया था, ये बताने के लिए कि देखो फॉर्मूला मूवी किस तरीके से बन रही है, तो ये एग्जाम्पल था। ये फेलियर है, ये जस्टिफाई वहां पे नहीं किया था। Audience's enjoyment is directly linked to the awareness of the underlying story structures. No, the audience is not aware of the story structure. तो फिर you can't reasonably be like infer. No, directly linked है, directly linked भी out हो जाता है यहाँ पर। तो उनको स्टोरी स्ट्रक्चर पता हो या नहीं, अवेयरनेस है या नहीं, यू कांट just infer it. Subtle concealing. See, the point again comes about hiding, about disguise, about veiling, about concealing. ठीक है, so this concealing of formulaic structures in films allows the audiences to enjoy the illusion of novelty. Illusion मतलब एक्चुअली में नहीं है चेंजेस कुछ, सिर्फ अलग अलग इंसिडेंट्स के साथ, डिस्गाइज के साथ, कंसीलमेंट के साथ, तो लोगों में, ऑडियंस में ये इल्यूजन बना रहता है कि ठीक है इतनी बढ़िया मूवी हो गई, लेकिन एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर वापस वही है, फॉर्मूला बेस्ड। Dominance of traditional story structures is due to a lack of talented screenwriters. You can infer this. स्क्रीन राइटर्स होंगे, टैलेंटेड भी होंगे, लैक हो ये हम नहीं इन्फर कर सकते। वो कुछ नया नहीं कर रहे, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, से इंसिडेंट्स चेंज कर रहे हैं, वैरायटी तो लेके आ रहे हैं, लेकिन बेस वही है, राइट? तो हमें ये बताना है, तो वी नीड टू इन्फर समथिंग रीजनेबली। रीजनेबली यानी लॉजिक लगा के इन्फर करना है, कुछ भी नहीं कर सकते ना फिर। तो हम लैक के लिए बताओ कहां से पता चला, तो वी कांट, बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑल्सो विल बी बेस्ड ऑन वॉट एवर इज गिवन इन द पैसेज। नो, हमें अपने दिमाग से नहीं सोचना है फिर इतना, हमें समझना है कि कहीं पे बेस कुछ तो होगा। तो देयर वाज नथिंग दैट कुड लीड अस टू अ लैक ऑफ टैलेंटेड स्क्रीन राइटर्स, क्वेश्चन मार्क हो जाता है वहां पर। ठीक है, दीज आर द प्लेसेस वेयर यू वुड गेट द पॉइंटर्स। Which of the following situations is most analogous? Analogy यानी similar. और similarity किसमें चाहिए? It disguises a formulaic story structures as variety. ठीक है, दिखाते variety है लेकिन होता same है, तो रूट लेवल सेम, ऊपर वैरायटी अलग अलग फ्लावर्स, ऐसा सोचो। तो रेस्टोरेंट चेन ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेन्यू आइटम्स, ऑल ऑफ विच आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज। हो गया, वैरायटी है, आपने पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ लिया, बेस वही व्हाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी, पिंक ग्रेवी। अब उसमें वो चाहे मशरूम्स बनाए, उसमें चाहे पनीर बनाए, उसमें चाहे मखाने बनाए, चाहे कुछ भी बना लें, the gravy is still the same. So in that case, they are changing the ingredient there, the major one, but they are still coming up with the same preparation. So disguise हो गया, लेकिन base same हो गया। यहाँ पे देखो, university introduces a new curriculum that is entirely based on experimental and unpredictable teaching methods. ठीक है, new है, unpredictable है, तो बढ़िया है। यहाँ पे कहीं पे धोखा नहीं दे रहा है वो, कि पुराना वाला ही दे दिया, ऊपर से हमने बस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया, ये धोखा होता। वैरायटी चैप्टर का नाम चेंज कर दिया पर अंदर आपने हिस्ट्री वही दे दी, राइट? तो देन इट वुड बी, दिस इज ओके फाइन, इट इज गिविंग यू एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड्स। नो, तो अगर न्यू है तो आपको कुछ मिल भी रहा है। म्यूजिशियन कंपोजेस अ कंप्लीटली ओरिजिनल सिम्फनी विद नो रेफरेंस टू द एस्टैब्लिश्ड म्यूजिकल फॉर्म्स, ये भी ठीक है। पुराने से कोई रेफरेंस ही नहीं है, मतलब पूरा नया दिया है, हमें क्या देना है, दिखावे के लिए कुछ नया है लेकिन होता वही पुराना है। ठीक है, मतलब द सेम गिफ्ट बट रैप्ड अप इन अ न्यू गिफ्ट पेपर, ऐसा सोचो। A political leader proposes radical reforms that fundamentally change the structure. बिल्कुल, तो radical reforms और fundamental changes, सही बात है। तो कहीं पे भी डिस्गाइज या धोखा नहीं है, जहां पे डिस्गाइज धोखा था वो ये रहा, रेस्टोरेंट चेन। एक ही चीज दिखाएंगे, एक ही चीज का बेस बनेगा, लेकिन ऊपरी तौर पे अलग अलग। So why might the reset at the end of films be considered a reinforcement of the status quo rather than genuine change? आपने रीसेट तो कर दिया, पर वो है क्या? रीइंफोर्समेंट है स्टेटस को, मतलब सेम थिंग, टू बी एज यू आर एंड रादर देन अ जेन्युइन चेंज। तो नॉट चेंजिंग, लेकिन जो जैसा है वैसे का ऐसे ही रहेगा, उसे स्टेटस को बोलेंगे। इट अलाउज ऑडियंस टू एक्सपीरियंस रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पर हो नहीं रहा है ना रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट चेंज कहाँ हो रहा है? तो हम इसे आउट कर देंगे, इसे आउट कर देंगे। restores the original conditions, ये रहा।
restores. Making any change temporary. Correct. Underlying order unchanged. वापस formula movie पे. It introduces new characters and settings, ensuring that story is never repeated. बढ़िया, लेकिन ये तो नहीं था ना. It was not according to what was given in the passage. It signals the protagonist complete break from society. इसे भी हम आउट कर सकते हैं. ठीक है, हमें क्या चाहिए? रीसेट वाला जो कि वापस से उस पे आ जाएगा. Without going into a genuine change, it established the same status quo. We have it here. It's as if we are being invited to experience the fantasy of infinite possibility wala. How does the author's view challenge the assumption that innovation in storytelling necessarily leads to greater freedom for audiences? हमें चैलेंज करना है कि आप इनोवेशन से ग्रेटर फ्रीडम फॉर ऑडियंसेस होगा. ठीक है, वी नीड टू चैलेंज दिस स्टेटमेंट. Author argues that innovation in storytelling always results in more complex and unpredictable narratives that truly liberate audience. हाँ ठीक है, इनोवेशन से ये होगा. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कुछ चैलेंजिंग चाहिए. मतलब रेजिंग अ क्वेश्चन, पोज अ चैलेंज. आई हैव मेड यू राइट दीज फ्रेजेस. ठीक है, एंड आई हैव गिवन दिस इन ऑल द क्लासेस, राइट? सो इट इज नॉट अ चैलेंज हियर. दिस इज सेइंग यस, ऑथर बोल रहे हैं ना, इनोवेशन से क्या होगा? It will result in more complex and unpredictable narratives that truly liberate the audience. So this is the right thing, so not a challenge. Author suggests that even when storytelling appears innovative, underlying formulas and conventions can still constrain the audience's experience, making true freedom illusory. तो ये एक इल्यूजन है. इल्यूजन क्रिएट होता है. इल्यूजन का मतलब होता है कि सब ऐसे लग रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि कुछ नया है, लेकिन नया है नहीं. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब स्टोरी टेलिंग अपियर्स इनोवेटिव, ठीक है, जब इनोवेटिव होती है, लगता है कि इनोवेटिव है, बट अंडरलाइंग फॉर्मूला और कन्वेंशन यानी ट्रेडिशंस, दे कैन स्टिल कंस्ट्रेन द एक्सपीरियंस. फिर भी कर सकते हैं. हमें ये चीज इस पे क्वेश्चन उठा सकती है ना, कि ये ऐसा भी तो हो सकता है. जबकि इसने कहा था इट लीड्स टू ग्रेटर फ्रीडम. आप ये इधर बोल रहे हो कि वो फ्रीडम थोड़ा सा कंस्ट्रेन भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो सब इल्यूजन दिखेगा. तो पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है अगर ये, तो इट कैन रेज अ क्वेश्चन ऑन दिस assumption of the author, right? Author believes that the strict adherence to tradition is the only way to provide audiences. Only way थोड़ा सा strong हो जाएगा, क्योंकि ये एक relative terms होते हैं. ये relative terms है, कौन सी चीज ऑडियंस को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगी, नहीं देगी, सेटिस्फैक्शन देगी, नहीं देगी, ये इमेजरेबल है. ठीक है, आप उसको एक प्रॉपर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकोगे. तो जनरल स्टेटमेंट होता है, किसी को कुछ सही लगेगा, किसी को कुछ सही लगेगा. सो देयरफॉर दिस विल नॉट बी द ओनली वे. Author claims that independent films and alternative storytelling platforms have completely replaced. ये नहीं कर सकते. They have not completely replaced Hollywood's influence, granting the audiences genuine freedom. ये नहीं होगा. Influence पूरी तरीके से replace हो रहा है. Not there. ठीक है, तो दो पैसेजेस हो गए. सेकेंड वाले में 5 क्वेश्चन थे. आई थिंक सो 3 या 4 से ही जा सकते हैं. आई थिंक 4 हम कर लेते हैं, और पहले वाला था 3 on 4. तो दैट मेक्स इधर 7 on 10 करेक्ट, और आई थिंक somebody would get 8 on 10 करेक्ट ऑल्सो. ये भी 10 नहीं, सॉरी 9 है. ठीक है, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, थर्ड प्लेस कर लेते हैं. ये थोड़ा सा सीरियस नोट पे है. अगर इसकी पॉइंट हमने पकड़ ली पहले, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा पैसेज उसी बात को रिटरेट कर रहा है, राइट? मतलब आप ये सोचो कि जब कोई ऑथर्स लिखते हैं तो दे हैव वन पॉइंट, वन आइडिया इन देयर माइंड, नो, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस व्हाट दे राइट आर जस्ट वोवन अराउंड दैट पर्टिकुलर आइडिया. सो वी नीड टू क्लियरिफाई दैट. उसे हटाना है, समझना है, और उसमें से एक मोती निकालना है जो कि ऑथर का मेन पॉइंट होगा. बस यही ट्रिक है आपका करने का. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल बी एबल टू लाइक गेटिंग एटलीस्ट 80% ऑफ योर आंसर्स करेक्ट. एटलीस्ट बोलिए 5 में से 4 आपके सही जाएंगे. एक क्यों और कहाँ कैसे जा रहा है, वो उस टाइम के प्रेशर की वजह से
आपने मिस कर दिया होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास सारे आंसर सही जाए। ठीक है, तो हम पढ़ना ध्यान से है, सो देन दिस इज पॉसिबल। लेट्स रीड। Landmark case involving Kira Bell and the Tavistock and Portman NHS Trust centers on a deeply contentious issue. अब ये रहा contentious issue, तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है? Whether children can consent to life-altering medical treatments associated with gender transitioning, मतलब changes, gender changes करने में क्या children कंसेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ ऑल्टरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, और फिर ऐसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात भी की है। ठीक है, तो क्या छोटे बच्चे अपने ही जेंडर को चेंज करने के लिए कंसेंट दे सकते हैं या नहीं, मतलब क्या उनमें इतनी अक्ल है अभी, ये क्वेश्चन। Now, the High Court's ruling significantly challenges the previous practices of the Gender Identity Development Center Service, which provided puberty blockers to children as young as 10. 10 साल के बच्चों को, जहां पे कुछ ये सारे चेंजेस जो कि लाइफ टाइम के लिए होंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, इसको करने में कंसेंट देने का हक, राइट? तो हाई कोर्ट ने क्या किया, चैलेंज किया कि क्या ऐसा सही है, करना नहीं है। Kiera Bell's journey into this legal battle stems from her own profound personal experiences. From an early age, Bell diverged from gender norms, feeling disconnected from her biological sex. By her mid-teens, propelled by a struggle with depression and body dysmorphia, she sought medical intervention to transition from female to male. This process began with puberty blockers at 16, testosterone at 17, and a double mastectomy by the age of 20. However, Bell later regretted. ठीक है, यहां तक तो उसकी पर्सनल बता दिया कि उसने क्या किया, लेकिन बाद में उससे रिग्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस, ये डिसीजन इरिवर्सिबल थे, मेड इन अ यूथ। अ सेंटिमेंट एगोड इन अ पॉइग्नेंट इज लाइक हार्ट रेंडिंग, एकदम दिल को छूने वाली इमोशनल कोर्ट स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ चॉइसेस। मतलब 16-17 साल की उम्र में उसने ये सारी चीजें करवा दी, जेंडर ट्रांसिशन करवा लिया, बाद में उसे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों और क्यों जल्दी, मतलब कंसेंट की ही बात थी यहाँ पे प्रॉब्लम, राइट? और उसी का एग्जाम्पल दे दिया है कि बच्चों में इतना भी अक्ल नहीं होती कि भैया आप जो अपनी बॉडी से करने जा रहे हो या करवाना चाहते हो, राइट, इट इज इरिवर्सिबल। The core issue before the court was whether minors could genuinely understand and consent to the use of puberty blockers. ये रहा कोर इश्यू, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में भी दिया इधर, कंटेंशियस इश्यू, right? Again, here it is given whether they understand and whether they can consent. High Court articulated clear doubts about this capability, especially for children under 16, given the experimental nature of the treatment and its profound lifelong implications. ये जो ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, ये जो ऑपरेशंस और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, फुल टू लाइक इट इज नॉट established one, it is still in the making phase. ठीक है, तो अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, तो इसका नेचर एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए हाई कोर्ट ने इस पे क्वेश्चन रेज किया कि जब ये चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं, आप एकदम से उनको कंसेंट देने के लिए कैसे उनका हक दे सकते हो? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल, ना लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशंस है। So the judges underscored the unknown long-term health impacts of such treatments and noted the near automatic progression from puberty blockers to cross-sex hormones, which entail significant effects on fertility and sexual function. ठीक है, आप यहां से, ये फर्स्ट स्टेप है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, उसके बाद आप हॉर्मोन्स चेंज करवा दोगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी फर्टिलिटी पर और सेक्सुअल फंक्शन पर, तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो बेस वापस वही है कि क्या बच्चों को इतनी अक्ल है जो वो कंसेंट करें? द रूलिंग क्वेश्चन दिस, राइट? सो वट एवर वी आर रीडिंग, वी आर कमिंग बैक टू दैट सेम इशू कि प्रॉब्लम कंसेंट देने का है, कि कंसेंट छोटे बच्चों को अलाउ होना चाहिए या नहीं है, उनमें इतनी अक्ल है या नहीं है। Now, the judgment critically addressed the operational protocols of GITS, revealing a startling lack of essential data, including specifics about the children referred for puberty blockers, their mental health status, subsequent medical pathways. क्या करेंगे subsequent, यानी आगे फॉलो क्या होगा? तो आप अभी शुरुआत क्या तो बोल बता देते हो, लेकिन आगे उन्हें क्या क्या सहन करना पड़ेगा, किस किस चीज से गुजरना पड़ेगा, यू आर नॉट गिविंग देम दिस इंफॉर्मेशन।
So the High Court has raised questions here. एक तो डेटा नहीं है, दूसरा यहाँ पे दिया था ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल है. मतलब सोचो ये पूरा सब रीजनिंग हो रहा है ये बताने के लिए कि क्या कंसेंट देना चाहिए, बच्चों को इतना हक देना चाहिए ना. एक मैक्रो व्यू अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन, एक इशू है जो रेस किया गया है और बाकी सब उसका रीजनिंग हो जाता है. This absence of crucial information alongside the treatment's experimental status. Now see, he has wrapped it up here. Experimental status and absence of crucial information. Led the court to question the adequacy of the consent process under the existing gender-affirming model of care. This ruling is a watershed moment, means defining moment in the treatment of gender dysphoria in children within the UK, challenging the prevailing medical and psychological approaches. ये आ गए एक क्वेश्चन कि ये है इशू. Now, it underscores the necessity of rigorous informed consent processes that truly ensure young patients understand the severe, irrevocable nature of such medical interventions. Irrevocable is irreversible. ठीक है, हमें कंटेक्स्ट से ही समझ में आ जाना चाहिए. तो नेसेसिटी किस चीज की है? रिगरस इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेसेस. ठीक है, कंसेंट प्रोसेस रिगरस हो जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए. Moreover, the case raises broader societal and ethical questions about how best to support individuals with gender dysphoria, particularly when they are minors. Right? So, how to support these individuals? तो प्रॉब्लम यही था ना कि माइनस को सम अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कंसेंट भी देने का अलाउ कर दिया है, तो कितने कितनी लिमिट तक वो सही है. The implications of this decision reverberate beyond the courtroom, influencing future policy and clinical practice concerning the treatment of transgender and gender diverse youth. इसका मतलब बात सिर्फ कोर्ट की नहीं है, कोर्ट के आगे पॉलिसीज में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो अगर ये कुछ सेट हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस आपकी पॉलिसी मेकिंग पर भी होंगे. It serves as a precedent emphasizing the critical importance of safeguarding children within medical practices, ensuring that their rights of both self-expression and informed consent दोनों होने चाहिए. आपको self expression, if you want to change the gender, ठीक है, you have a right, but then you should be informed about what all is going to follow, and then you give a well informed consent. This is what the author is saying. तो ये properly balanced and protected होना चाहिए. This judgment does not solve all the complex issues surrounding the care of transgender children, but marks a significant step towards more cautious evidence based approaches. जब उसने कहा कि डेटा नहीं है, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट है कि डेटा होना चाहिए, तो अप्रोच जो है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. It also highlights the ongoing need for comprehensive support systems for those affected by such rulings, ensuring that every child grappling with gender identity receives empathetic expert guidance and care. Empathetic is where you are able to understand what the other person is going through. As per the passage, which of the following would support the author's conclusion that consent process in the gender affirming model of care may be inadequate? हमें क्या चाहिए, कुछ ये बताएगा कोई सेंटेंस कि हाँ ये कंसेंट प्रोसेस या अप्रोच जो है वो इनएडिकेट है. तो हाई कोर्ट नोटेड द एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स एंड द प्रोफाउंड लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशंस. ये उसने अगर नोट किया, ठीक है, तो ऑथर की बात सपोर्ट हो जाती है कि ये जो मॉडल है अभी तक कंसेंट प्रोसेस वाला जो मॉडल है वो इनएडिकेट है. क्योंकि दो तीन चीजें बोली थी उन्होंने, एक डेटा नहीं है ज्यादा, अप्रोचेस के लिए यू डोंट हैव अ फिक्स्ड लाइक समथिंग दैट इज एविडेंस्ड, वो चीज नहीं है. ठीक है, और ड्रग्स भी जो यूज हो रही हैं, जो भी कुछ यूज हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल नेचर में ही है अभी सब. ठीक है, केरा बेल वॉज ओनली एन एग्जाम्पल, so not a supporting point here. Treatment protocols it gets included a progression from this. ठीक है, उसे बोला ट्रीटमेंट में प्रोग्रेशन होगा और यही तो था ट्रीटमेंट, वो प्यूबर्टी ब्लॉकर से स्टार्ट करके क्रॉस सेक्स हार्मोन्स पे जा ही रहा था, तो ये तो स्टेटेड था. राइट, आई नीड दैट वेयर द ऑथर सेज दैट दिस कंक्लूजन is
All this care may be inadequate. ये conclusion था. I need something to support this conclusion. Lack of essential data on the long-term health impacts of it. Was it only health impacts? No, it was major irreversible things. Right? Long-term health impacts तो होगा, ठीक है, पर सिर्फ हम इसके लैग के हिसाब से कर लेंगे, ये भी बात सही है. मतलब देयर वुड बी अ कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड डी. मोस्ट ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड है. तो थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो. देखो क्वेश्चन क्या था. यू नीड टू सपोर्ट द ऑथर्स कंक्लूजन. अब ऑथर का कंक्लूजन क्या है कि जो कंसेंट प्रोसेस है, ठीक है, अभी अंडर एग्जिस्टिंग जेंडर अफर्मिंग मॉडल ऑफ केयर मे बी इनएडिकेट. हो सकता है वो कुछ लैक कर रहा हो, ठीक है, सिर्फ डेटा लैक करता है कि क्या क्या इफेक्ट हुआ है इस पे. अगर मुझे इसका डेटा मिल जाए तो क्या ये ऑथर खुश हो जाएगा? क्या अब बिल्कुल सही है सब बातें? नहीं. लेकिन हाई कोर्ट, अब ये तो सिर्फ एक डेटा आ जाएगा ये बताने के लिए कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, राइट. अगर हाई कोर्ट ने कहा कि देखो तुम जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वही एक्सपेरिमेंटल बेस पे, मतलब आपको करनी नहीं चाहिए ये ट्रीटमेंट अभी, क्योंकि फिक्स रिजल्ट्स अभी तक नहीं है कुछ भी. यहाँ पे फिक्स रिजल्ट्स की बात नहीं है, यहाँ पे फिक्स रिजल्ट्स के डेटा की बात है, यहाँ पे रिजल्ट्स की बात है. तो दिस बिकम स्ट्रॉन्गर कि आपका एक्सपेरिमेंटल अभी फेज चल रहा है और आपने उसको लोगों पे यूज कर दिया. अब आगे क्या होगा नतीजा पता ही नहीं आपको, और यहाँ पे नतीजा तो हो गया है पर कितना हुआ है किसको और क्या हुआ है ये नहीं बताया आपने. सो रूट लेवल पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी एंड नॉट दिस वन. ठीक है, वी हैव इट spread out in this part of the passage as well as in the second part. ठीक है, तो वही है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसमें. Which of the following is would most strengthen the author's argument about the need for rigorous informed consent? Why is it required? ठीक है, उससे पहले इनएडिकेट कहा था, लेकिन अभी नीड क्यों है कि रिगरस होना चाहिए कंसेंट प्रोसेस. ठीक है, so significant percentage of minors who undergo puberty blockers later express satisfaction? No, but they would be regretting. Research shows a direct correlation between the use of puberty blockers in minors and a reduction in gender dysphoria symptoms. ये कहीं से भी हमने नहीं समझा है कि puberty blockers से रिडक्शन हो जाएगा, नहीं. puberty blockers जेंडर डिस्फोरिया की वजह से puberty blockers उन्होंने यूज किए थे, लेकिन उसके आगे का ट्रीटमेंट और भी था. Many countries aside from the UK are reconsidering their policies on gender transitioning treatment for minors. Right. Okay, if they are reconsidering their policies, but what about the treatments? Policies on the treatments ठीक है, रिकंसिडर कर रहे हैं, सही हो लगेगा आपको, लेकिन ट्रीटमेंट की बात हो रही थी. पढ़ते डॉक्यूमेंटेड हाई रेट ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम प्यूबर्टी ब्लॉकर्स टू क्रॉस सेक्स हार्मोन्स व्हिच कैरी सिग्निफिकेंट हेल्थ इंप्लीकेशंस. ठीक है, अब प्यूबर्टी ब्लॉकर्स यूज करके फिर आगे आप क्या यूज करोगे? क्रॉस सेक्स हार्मोन्स. क्रॉस सेक्स हार्मोन्स यूज करोगे तो इरिवर्सिबल चॉइसेस होंगी और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे हेल्थ पर, हेल्थ इम्प्लीकेशंस होंगे. तो ये चीज अगर फिक्स है कि फिक्स इन द सेंस एक्सप्रेस्ड और ऑब्जर्व्ड और एविडेंस डॉक्यूमेंटेड हाई रेट है, तो पीपल चिल्ड्रन टेकिंग प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देन मूविंग टू द क्रॉस सेक्स हार्मोन्स देन मूविंग टू देयर दिस ऑपरेशंस एंड ऑल, राइट. तो अगर ये डेटा मिल जाता है, मतलब ऑथर का ये कहना कि हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस जरूरी है, ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दिस सेंटेंस वुड बी सपोर्टिंग द ऑथर्स पॉइंट. Based on the author's arguments, which of the following must necessarily be true? Again, something that is definitely true. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे नहीं, यही हो जाए. Minors are generally capable of understanding the long-term implications. Are they capable? They may or may not be. तो जनरली नहीं बोल सकते. जनरली मतलब 80% कम से कम, वो नहीं होगा. Judges question the adequacy of existing consent process due to the experimental nature. देखो, एक्सपेरिमेंटल नेचर की वजह से जजेस ने क्वेश्चन किया कि ये कंसेंट प्रोसेस सही भी है या नहीं.
क्यों? क्योंकि ऑथर का कंटेंशन ही यही था, जज का भी, कि फर्स्ट पैराग्राफ में भी उन्होंने कहा था कि कंटेंशियस इश्यू है, सेकेंड पैराग्राफ में भी उन्होंने कहा कि दिस इज द कोर इशू. Why are the people? Why is the High Court raising challenges or challenging this point? Why? Because it is in the experimental nature. Still उस फेज में है. तो यही बात डेफिनेटली ट्रू होती है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. It has led to the discontinuation of all gender transition. No. And puberty blockers have been proven safe, but nothing has been proved. Why? Because it is still in the experimental phase. So you can easily eliminate three options and come to the right ones. Which of the following is the author most likely to agree with? The Gates approach to gender affirming care adequately considered the mental health statuses. Did they consider? No. नीड फॉर इम्प्रूव डेटा कलेक्शन, हाँ. जब ऑथर बोलता है कि देखो डेटा भी नहीं है इनके पास, तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि देखो डेटा होना चाहिए इनके पास. ठीक है, ऑथर ने जो लिखा और उसके थ्रू क्या समझ में आया है वो बातें समझो. When the author says they see they did not have that much data, it is still in the experimental stage, the treatment. So what is his point? That they should come up with all this treatment when something proper is proven. So it is not proven, that means, right? And data होना चाहिए, but data है नहीं इन processes का. That means the need for improved data collection and analysis is critical to ensure the safety and effectiveness of puberty blockers for minors. And puberty blockers should be available to all minors. जरूरी नहीं है ना. वही यही तो पूरा कंटेंशियस मैटर था कि क्या उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है. नहीं. Absence of long-term health impact data on puberty blockers does not significantly impact the quality of the consent process. No, but he would not agree to this because it impacts. तभी तो वो बोल रहा है कि देखो डेटा ले आओ, डेटा है नहीं, क्योंकि absence of the data impacts. And here you are saying it does not impact. तो ये आउट हो जाएगा. ठीक है. Which of the following implicit assumptions can be logically deduced from the author's argument regarding the consent process? Okay. We need something that can be inferred. Outcomes of puberty blocker use are fully reversible, irreversible, irrevocable. 2 से 3 बार उसने बोल दिया था. It is crucial because the treatments have irreversible and significant lifelong implications. See, this was established in every paragraph. So, all minors receiving puberty blockers are fully aware? No. Experimental status puberty blockers ensures that they are always administered? No. अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेटस में पेरेंटल कंसेंट के साथ कहाँ ये बताया था कुछ भी, राइट? Which of the following can be concluded from the sentence? Implications of this decision reverberate beyond the courtroom. ये समझाया भी था मैंने कि ये सिर्फ कोर्टरूम का मैटर नहीं है, उसके आगे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बनेंगी इनकी केयर के को लेकर. ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स यूथ. सो डिसीजन ओनली अफेक्ट्स द लीगल प्रोसीडिंग्स? नो. उसे कहा था बियॉन्ड द कोर्टरूम, तो ओनली अफेक्टिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स आउट. Decision has consequences beyond shaping the future policies, clinical practices, ये समझ सकते हैं. Decision is irrelevant to the transgender, आसानी से आउट हो जाएगा. Concerns economic policies rather than clinical, आउट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लीगल नहीं है, बाकी की पॉलिसीज भी हैं. यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, तो ये गलत हो जाएगा. चलो, तो आई थिंक आउट ऑफ 6 4 या 5 सही होंगे. तो वी हैड 9 and 6 15 हो गए थे हमारे पास. अब इसके 5 है और अगले के 4 हैं. सो आउट ऑफ 15 आई थिंक सो 7 on 9 था प्लस 4 11 on 15, और इट कुड बी 12 on 15 और 13 on 15 भी हो सकता है, अगर ये पूरा ध्यान से करा तो. चलो फोर्थ पैसेज देखते हैं. As different parts of the UK find themselves under varying degrees of restriction as indoor pleasures dwindle for many, the outdoors may provide some shred of solace, some healing connection to nature. Indoor pleasures अगर dwindle हो रहे हैं, तो outdoor से थोड़ी बहुत healing मिल जाएगी. Impervious to human travails,
Autumn happens to be putting on a particularly spectacular extended show this year. मतलब ऑटम बड़ा प्यारा दिख रहा है आजकल, उसका माहौल बहुत अच्छा है. यहाँ पर impervious to human travails का मतलब होता है ह्यूमन सफरिंग्स तो है, लेकिन ऑटम को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसे ही ब्यूटीफुल दिख रहा है. अब उसे डिस्क्राइब करना शुरू किया. Thanks to a damp August and sunny September. In some parts of the UK, acers or Japanese maples are now entering the period of the most vivid crimson pomp. ठीक है, अब देखो यहां से समझ में आ गया आपको कि ये भी ऑटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. It is shedding its delicate apricot autumn foliage to reveal its handsome dark branches. Oaks are on the turn towards a warm yellow. ठीक है, ऑटम में पतझड़ का मौसम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये या तो पतझड़ होते हैं तो शेडिंग उसको बोलते हैं. एप्रिकॉट ऑटम फोलिएज यानी ग्रीन लीव्स, तो वो सूख जाती हैं फिर गिर जाएंगी तो पतझड़ हो गया, येलो बन जाएंगी ये. और क्योंकि अगर पतझड़ हो जाता है तो फिर क्या दिखेगा, डार्क ब्रांचेस. तो नाउ यू कैन सिंपली लाइक विजुअलाइज कि ऑटम कैसा दिख रहा है. Observing the seasonal drama is called momijigari in Japan or leaf peeping. National Trust knows that British are becoming more susceptible at this time of crisis to its pleasures. Right? Susceptible means affected. अब उसे प्लेजर्स, ऑटम के प्लेजर्स पसंद आ रहे हैं. इट इज ऑल्सो रिमार्केबल ईयर फॉर एप्पल्स एंड हनी सेंटेड क्विंसेस, इंडीड फॉर फ्रूट एंड बेरीज ऑफ ऑल काइंड्स, फ्रॉम रोवन एंड स्लेव टू स्पिंडलबेरी. अब ये सोचने मत बैठ जाना कि ये कौन से फ्रूट आ गए भगवान. बेरीज है, फ्रूट है, जो भी हो, आपको तो ऑटम का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है. दैट्स इट. फॉर दोज लकी इनफ टू हैव अ गार्डन, raking is now a seasonal task and ritual. The rich scent of rain on fallen leaves, a small pleasure to be savored. ठीक है, अगर किसी पास गार्डन है तो वो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, गीली मिट्टी की खुशबू और ये सब आराम से एंजॉय कर सकता है. फिर planting the daffodil bulbs and sweet pea seeds is to engage in small act of optimism and expectation. It is to insist that there is something to look forward to. आपने एक पौधा लगाया, बीज लगाया, फिर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये कैसे धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो ये ऑप्टिमिज्म है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग आ जाएगा. In parks and gardens alike, there's a last spectacular showing of color. Flushes of late roses, dahlias, and salvias still going strong. Messy banks of purple Michaelmas daisies are still attracting bees, as are in the south the musty scented autumn flowering blooms of clambering ivy. Clamber मतलब climb से relate करते हो, ऐसे ivy ऊपर चढ़ती है. ठीक है, which also provides sustenance for moths and hoverflies. Again, welcome signs of new life. Gardens in general are disheveled but joyous in October, like a relaxed guest at a party, flushed and happy and faintly anarchic, no longer on best behavior. यहाँ पे उसने एक एनालॉजी दी है. ठीक है, मतलब ऐसे जो कि ना लंबी पार्टी है और ये कोई गेस्ट ऐसे काफी आराम से खा पी के बैठे हैं, तो वो अभी बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं रहेंगे, वैसे ये प्लान्स भी हो गए. Garden birds are getting hungry once more for seeds and nuts. Good news for human spectators of the avian theatre offered by great tits and the like as they bicker and flutter round garden feeders. गार्डन फीडर्स जहाँ पे उनको दाना रखा जाता है, फिर वहां पे कई कई तरीके की बर्ड्स आ जाती हैं. तो जो बर्ड वॉचर्स होते हैं ना, एवियन एनी बर्ड्स, जो बर्ड वॉचर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. ह्यूमन स्पेक्टेटर्स जो हैं, तो दे विल बी हैप्पी विद दिस गुड न्यूज. Charms of goldfinches are making greedy incursions on nodding sunflower heads. Autumn migrations are in full swing. So now here they are talking about the birds. Here they were talking about the flowers. A walk, whether urban, suburban or rural, serves for many to clear the head. मतलब जब दिमाग में कुछ समझ नहीं आता ना कि करें क्या, तो एक वॉक पे जाया करो. इससे क्या होगा, चाहे कहीं भी अर्बन, suburban और रूरल एरियाज में हो, it serves for many to clear the head, and if it involves kicking through crisp brown leaves, then so much the better. ठीक है, मतलब आप ऐसे चल रहे हो गार्डन में और वहां पे ब्राउन लीव्स हैं, पतझड़ का मौसम है, ब्राउन लीव्स गिरी होंगी, येलो लीव्स गिरी होंगी, और आप ऐसे ना किक करते हुए चल रहे हो, किक करते हुए चल रहे हो, तो और भी मजा आएगा क्योंकि उससे से दिमाग भी चलेगा तुम्हारा. दिस इज जस्ट अ थॉट, राइट. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. So that means these are small things which you can enjoy during this autumn part. तो पूरा डिस्क्रिप्शन है. The clocks go back in the UK this weekend. It can be hard to summon up enthusiasm. ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑटम अब खत्म होने वाला है. अब ऑटम खत्म होते होते अगस्त सितंबर अक्टूबर खत्म होते फिर विंटर आता है,
और यूके का विंटर डिसमल with rising infections, redundancies, and family members often kept apart. Enjoying small seasonal pleasures cannot be much of a consolation to those who have lost a job or face a collapse in earnings or who are sick or anxious about their loved ones. But the beauty of autumn is not quite nothing. ये समझो not quite nothing का मतलब दो negatives हैं. This comes up as a figure of speech that is litotes. So do not pass a late rose without first smelling it. तो छोटी छोटी सी चीजें जहाँ पे आपको खुशी दे सकती है ऑटम में भी. ये जितने फ्लावर्स मेंशन्ड है ना उनमें से कुछ है और ये गार्डन बर्ड है. ये धेलिया है. Now, which of the following is a correct expression of author's opinion as stated in the passage about the impact of seasonal changes on public well-being? So the beauty of autumn is insignificant and fails to offer any real solace. Insignificant नहीं है. ठीक है, छोटी छोटी सी बातों में भी प्लेजर्स लेने का पैसेज ने बोला था. सब्सटैंशियल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखा है क्या? करंट ग्लोबल क्राइसिस से हमें छुट्टी दे दे, छुटकारा दे दे. नहीं, ऐसा तो नहीं था. रिडक्शन इन डे लाइट आवर्स ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. मतलब क्योंकि धूप कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो जाते हैं हम. ऐसा कहीं से था क्या? हमने तो कुछ डिस्कस नहीं किया ऐसा. हटा दो फिर. ब्यूटी ऑफ ऑटम प्रोवाइड सम सोलेस. कुछ तो शांति मिलती है. इट इज अल्टीमेटली इनसफिशिएंट टू कंसोल दोज सफरिंग फ्रॉम सिवियर इकोनॉमिक और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, तो जो यहाँ पे उसने एंड में बोला था ना, तो दिस वाज द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन. तो एक ऑटम है, कुछ तो उससे बेनिफिट मिलता है या कुछ तो खुशी मिलती है, लेकिन फिर जब हम हकीकत में आ जाते हैं तो वो डैम्पन हो जाती है थोड़ी सी खुशी. ठीक है, तो इकोनॉमिक है, सिक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी. तो इट इज इनसफिशिएंट टू कंसोल एंड देयरफॉर डी. Which of the following would support the author's conclusion that engaging in simple activities like planting bulbs or raking leaves can foster optimism? We can go back to that paragraph and see. Studies show that engaging in gardening activities can significantly reduce stress and enhance mental well-being. Gardening is a tedious chore. मतलब ये रोज का काम है और बड़ा सा दुखदाई है, टीडियस है, बड़ा डिफिकल्ट है. ऐसा कहीं नहीं बोला था उसने. बोला प्लांट अ डैफोडिल बल्ब, तो आपको ऑप्टिमिज्म होगी कि देखो अब ये खिलने वाला है. They have led to the development of virtual gardening experiences that are becoming more popular. तो virtual gardening नहीं होता है. किसी ने ना अपने दिमाग में अगर वर्टिकल गार्डनिंग को वर्चुअल गार्डनिंग समझ लिया तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है. वर्चुअल यानी समथिंग दैट इज नॉट फॉर रियल. डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल गार्डनिंग एक्टिविटीज, तो बात गार्डनिंग एक्टिविटीज की नहीं थी. There is something to look forward to, gives you optimism. Based on the author's arguments, which of the following must necessarily be true about the effect of observing nature's seasonal changes? Necessarily true. Observing seasonal changes like autumn foliage has no substantial impact. Seasonal changes provide a universal remedy for all forms. इतना भी absolute word नहीं था. Act of observing seasonal changes can offer a temporary respite from the stresses. पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगी वो स्ट्रेस को. किसी का जॉब गायब हो गया, किसी को पैसे कम हो गए, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस तो रहेगा ही सही. लेकिन गार्डनिंग जैसे छोटी छोटी चीजें करके या सीजनल चेंज को ध्यान से निहार के पता चलेगा कि यस एटलीस्ट यू विल गेट अ लिटिल सोलेस देयर. ओनली इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू प्राइवेट गार्डन्स. प्राइवेट गार्डन्स की बात नहीं थी, उसने तो बोला था ना. सिर्फ प्राइवेट गार्डन्स होगा, बोले अगर होता है तो they are lucky enough to have the private garden. That does not mean that only those people will be happy, those who have a private garden. इतना स्ट्रॉन्ग फिर नहीं आया था. यहाँ पे भी था, we may provide some shred of solace. थोड़ा बहुत तो solace मिलेगा. Solace is shanti, peace. Which of the following judgment most closely conforms to the principle stated above regarding the beneficial impact? Engaging in outdoor activities should be mandated. ऐसा है क्या? उसके बाद प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी टू कॉम्बैट मेंटल हेल्थ इश्यूज. फाइट करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा. इतना स्ट्रांग तो उसने नहीं बोला था.
उसने बोला था अगर हम ये चीजें करते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड तो थोड़ा बहुत शांति तो मिल ही जाएगी. While nature provides a temporary relief, structured psychological interventions are necessary for addressing serious mental health challenges. यही था. You need something that can be almost similar to the principle that the author has given. Beneficial impact of nature on mental तो ये है. Beneficial impact होगा. ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके लिए हमें ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा. तो ये बात सही हो रही है. क्यों? क्योंकि ऑथर ने 2-3 बार कहा था कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सोलेस मिल जाएगा. राइट, अ श्रेड ऑफ सोलेस उसने कहा था. सो ये ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से हम ट्रीट हो जाएंगे, नहीं. एटलीस्ट थोड़ा स्टेप अहेड विल बी. So because observing nature offers significant mental health benefits, all other forms of therapy should be considered secondary. ये नहीं कर सकते. All other could be considered secondary is out. Outdoor activities and nature observation should be completely discounted. No. As methods of improving, completely discounted. कि मतलब यही चीजें क्राइसिस में यही चीज काम आएगी, बस ऐसा इतना स्ट्रांगली नहीं था. उसने कहा था ये सब चीजें अच्छी हैं, ऑप्टिमिज्म में थोड़ा बहुत तो हमें सोलेस मिल जाएगा. वी कम बैक टू द सेम पॉइंट दैट इट इज गोइंग टू हेल्प अस इनिशियली. राइट. How does the author suggest the small pleasures of nature like observing autumn's changes or gardening contribute to coping with broader societal changes? So they can act as serve as acts of defiance against societal despair, offering moments of joy and optimism in difficult times. So ये तो करेगा. They contribute. They are only relevant for those who have historically engaged in them. इतना strong नहीं था. Activities trivial है and provide no real benefit. No, they do provide us benefit. And they offer a complete escape. No, they give us only a shred of solace, not a complete escape. So this is out. So यहाँ पर भी हमारे पास काफी सारा है where you can understand this sentence. Oh, we come to AR. तो वहां पे 5 क्वेश्चन से 5 में से 4 सही हो जाने चाहिए थे. तो 15 में से 11 मीन्स you have like 15 on 20 और you can have 16 on 20 और 14 on 20 भी होगा. 16 17 भी हो सकता है क्योंकि ये तीनों सही जाएंगे. अगर चारों सही जाते तो you have 20 on 24 देन. ठीक है, चलो. पॉइंट एम इज 14 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट ए. ये बड़ा सिंपल सी बात है. पॉइंट ए इधर कर दो, वेस्ट यहां पे आ गया पॉइंट एम. सो दिस लाइन इज 14 meters. Point B is 4 meters towards the south of point M. ये हुआ 4 meters. और ये है point B. And P, point F is 9 meters towards south of point M. ठीक है, ये तो B है पर इससे और नीचे आ जाएंगे तो 5 meters हो जाएगा और ये F हो जाएगा. Now, point E is 7 meters towards east of point B. ये रहा 7 meters. और है कौन सी पॉइंट? पॉइंट एफ हो गया पॉइंट ई. सो दिस इज पॉइंट ई 7 meters पर. पॉइंट जी इज 4 meters टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए. पॉइंट जी 4 meters. रेक्टेंगल बनते जा रहा है. एंड ये कहाँ गया? ई, नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई. पॉइंट सी इज 4 meters टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई. ठीक है, तो ये हो गया सी और ये भी 4 meters. नाउ यू कैन सी ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, एक्सटेंडेड ऐसे फ्लैग जैसा बन गया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर. ये एम सी ए हो गया, बीई जी हो गया और ये 5 हो गया, ये एफ हो गया. 7 7 7 7 14 4 and 5. Right? If this is created, good. Now you can easily do this. Which of the following points are in a straight line? ये या तो एम सी ए होगा या तो बीई जी होगा. ये रहा आपका आंसर. चेक कर लो ना, एक तरफ आपका ये जो पैटर्न बनाया वो और एक इधर उंगली. तो ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी? देखो ए कहां पे, ए और सी. तो ए इज इन द ईस्ट ऑफ सी. If a person walks 5 meters towards north from point F and then takes a right turn, which of the following points will he reach first? So he moves 5 meters towards north from point F. यहाँ से 5 meter north and then takes a right turn and then he is at E or he'll reach E first. ये रहा E.
G is in which direction with respect to M? ये ध्यान से पढ़ा करो कि किसका किसके साथ रिस्पेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू M. तो G के डायरेक्शन बतानी है विथ M. तो G इज इन द साउथ ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ और ईस्ट की तरफ, तो दिस बिकम साउथ ईस्ट. अगर M का पोजीशन पूछा होता तो वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता. ठीक है, M का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू G इज नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट. ठीक है, G का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू M दैट बिकम्स साउथ, नीचे तरफ जा रहा है और ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा. तो दिस इज वे यू नीड टू फोकस ऑन, यहां पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए. तो ये वाला तो क्वेश्चन इजी था, तो ऑल 4 करेक्ट हो जाने चाहिए थे. विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम यू शुड हैव डन दिस द फर्स्ट थिंग. और ऐसे अगर किसी का एक पूरा पैसेज छूट गया तो वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ, because the passages were not very difficult. You should strive to complete all 24 questions or at least 22 questions. कि दो चलो नहीं समझ में आए तो आपने नहीं मार्क किया, पर पढ़ना तो था और पैसेज छूटना नहीं चाहिए था. ठीक है, सो 24 to 27 मिनट्स आप दे सकते हो. क्वेश्चंस आपके 22 to 24 होने चाहिए थे. 24 होते हैं तो आपके पास 20 प्लस करेक्ट, 20 भी करेक्ट होते हैं तो देन यू गेट 19 मार्क्स, राइट. सो दीज आर गुड इनफ. And I think at least a few of you would get 21 marks अगर मिले होंगे तो, मतलब पॉसिबिलिटी है अगर ध्यान से किया होगा. पर ये भी समझना कि किसी ने बहुत ज्यादा टाइम देकर ध्यान से पढ़ के फिर 23 मार्क्स लेके आया, पर इक्वेशन चेक करो कि आपने किस और सेक्शन में कम किया है, टाइम दिया है और वहां पे आपका कुछ छूट गया है क्वेश्चंस करना जो कि आप कर सकते थे. तो ओनली इन वन सेक्शन आपको नहीं चाहिए, तो यू शुड बी इक्वली गुड इन द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस आल्सो. हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, हाउ मच how many questions you are able to do your attempts and how many answers you are able to get correct, इस पूरे का एक इक्वेशन सेट आपको समझना चाहिए. ग्रेजुअली जैसे आप और आगे का टेस्ट और देते जाओगे या पहले भी जो टेस्ट दिए उसके साथ साथ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, राइट. सो डिसेंट इज 15 प्लस, इफ यू गेट करेक्ट आउट ऑफ 24 इट्स गुड इनफ. आपके पास 13 मार्क्स मिलेंगे जो कि मिनिमम मिनिमम मिलने चाहिए अब तो. ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं है. जुलाई एंड, वी हैव अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सोचो आप बहुत जल्दी जल्दी होगा काम अपना. ठीक है, सो यू हैव टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स, यू हैव दीज 3 months, राइट. सो that's all for today. So thank you and stay logical, stay positive, be logical and be positive always. See you.